morning, students. As we know that we are going through chapter 6 from Hornbill, and the title of the chapter is The Browning Body. Children, this chapter is written by Terence Rattigan, and in this chapter, in the previous lectures, we have read that the author has taken the background of this chapter from the school, and as we have read, the main characters are Mr. Frank, Mr. Croker Harris, and Caplo. And children, we have read that Caplo is a boy of 16 who is in lower fifth and whose remove is not yet declared by the teacher, Mr. Croker Harris. And when he comes to school on the last day of the session, Mr. Frank, who is a young science teacher, meets him, and Mr. Frank and Caplo start conversation with each other. Mr. Frank wants to know why Caplo has come to school on the last day of the session, and Caplo tells Mr. Frank that he has come there for the extra work for Mr. Croker Harris, and when he will do the extra work for him, Mr. Croker Harris then will declare his remove. Remove stands for the result of pass with good percentage of marks, with good grades. So students, today we shall start from the beginning of page number 52 with a dialogue of Caplo. Okay students, तो देखिए बच्चों, जब फ्रैंक नाम का जो टीचर है कैप्लो से पूछता है कि वो लास्ट डे ऑफ द सेशन वहाँ क्यों आया, तो सिंपली टेल्स कैप्लो टेल्स इन द रीजन के वाई ही हैज कम देयर. कैप्लो सिंपली उसे बताता है कि वो वहाँ क्यों आया, जैसा कि उसने मिस्टर क्रोकर हैरिस का क्लास मिस किया था, तो उनके लिए एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया. सो स्टूडेंट्स, सी द डायलॉग ऑफ कैप्लो. यस सर, and I might be playing golf. You would think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. अब देखिए, Caplo says to Mr. Frank that as the weather is very fine and he has come there for doing extra work for Mr. Croker Harris. If he has not come there, so he would be playing golf as the weather is very fine. देखिए, कैप्लो मिस्टर फ्रैंक से कहता है, देखिए सर, मौसम कितना अच्छा है और मैं गोल्फ खेल रहा होता, एंड बट oh no, I missed a day last week when I was ill. कहता है सर, मैं गोल्फ खेल सकता था, गोल्फ खेल रहा होता, और आप सोचोगे कि उसे भी तो बहुत कार्य करना होगा. ये बात देखते हुए कि कल सदैव के लिए जा रहा था, मीनिंग देयर बाई
meaning thereby if he will do the extra work for Mr. Croker Harris, meaning thereby he will surely get his remove. लेकिन कहता है अरे, कहता लास्ट वीक जब मैं बीमार था तो मैं स्कूल नहीं आ सका. कहता है आई मिस द डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इट. He is there on the last day of the session for the extra work for Mr. Croker Harris. The reason is simply that the last week he missed a day. He missed his class. He missed the Croker Harris class. So here I am, and look at the weather, sir. And so here I am for my teacher for extra work. And sir, see, the weather is very fine. तो देखिए अब फ्रैंक कहता है बैड लक. Still there is one comfort. You are pretty well certain to get your remove tomorrow for being a good boy and taking extra work. तो देखिए फ्रैंक कैप्लो से कहता है योर लक इज रियली वेरी बैड लक, तुम्हारा भाग्य वास्तव में खराब है. लेकिन देर इज़ वन कम्फर्ट, देर इज़ वन गुड थिंग. लेकिन एक अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण तुम यू विल बी ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के बनोगे. एंड यू विल श्योरली get your remove tomorrow. You will surely get your result of pass tomorrow. तो देखिए टैप्लो कहता है वेल ठीक है सर, आई एम नॉट श्योर सर, बट ही स्टिल हैज़ वन डाउट. लेकिन अभी भी टैप्लो को एक डाउट है. कहता है सर आई एम नॉट श्योर सर, मुझे पूरा विश्वास नहीं है. That would be true of the ordinary masters, all right. That would be true really in the case of the ordinary masters. They just won't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. बोले सर ये साधारण टीचर्स के लिए, साधारण जो सिंपल टीचर्स हैं, जो ऑर्डिनरी टीचर्स हैं, उनके विषय में तो ये कहना सत्य होता कि वे किसी लड़के के एक्स्ट्रा वर्क करने के बाद उसे रिमूव दे देते. बट दो सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रोकर हेरिस, टू द मिस्टर क्रोकर हेरिस. लेकिन इस प्रकार के जो रूल्स हैं वो क्रोकर हेरिस के साथ अप्लाई नहीं है. आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटसाइड इफ ही हैड गिवन मी ए रिमूव, एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर. बोले सर कल मैंने मिस्टर क्रोकर हेरिस से कहा कि क्या आप मुझे रिमूव देंगे. तो देखिए अब वो मिस्टर फ्रैंक को बताता है कि कल क्रोकर हेरिस से उसने कहा कि क्या सर आप मुझे रिमूव देंगे. तो सर जानते हैं कि व्हाट ही सेड सर, व्हाट मिस्टर क्रोकर हेरिस सेड. तो सर क्या आप जानते हैं मिस्टर क्रोकर हेरिस ने क्या कहा. तो अब देखिए फ्रैंक कहता है नो व्हाट हैड ही सेड, क्या कहा उन्होंने. तो टैप्लो इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस. अब देखिए imitating the voice of Mr. Croker Harris. In the same way, Taplow is saying to Mr. Frank. अब देखिए मिस्टर क्रोकर हैरिस की आवाज़ को इमिटेट करते हुए
उनकी आवाज़ की नकल उतारते हुए कहता है कि what was said by Mr. Croker Harris to him yesterday. Croker Harris ने कहा, my dear Taplow, I have given you exactly what you deserve. बोले मेरे प्रिय टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितना कि तुम डिजर्व करो। मैंने तुम्हें उतने ही अंक दिए हैं जिसके तुम अधिकारी, जितना तुम डिजर्व करते हो। आई हैव गिवन यू द मीन्स एग्जैक्ट मार्क्स वॉट एवर यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न कम और निश्चित रूप से न ही ज़्यादा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो कहता है, फिर मिस्टर फ्रैंक से कहता है, सर आपको पता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस ने एक्स्ट्रा वर्क की वजह से मुझे कम मार्क्स दिए हैं, अधिक नहीं। ही हैज़ गिवन मी लेस मार्क्स, नॉट मोर। I mean, the man is hardly human, and I mean to say that the man is hardly a human being, because Taplow wants to tell Mr. Frank that really Croker Harris does not have any kind of human feelings. बोले सर ये वास्तव में मानवता नहीं है। He breaks off quickly, और ये कहने के बाद वो तुरंत ही रुक जाता है। सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार, सॉरी सर, रियली आई हैव स्पोकन टू फार। बोला सर मुझे अफसोस है कि मैं ज़्यादा बोल गया। अब देखिए फ्रैंक कहता है, यस मस्ट टू फार, यस कुछ अधिक। तो देखिए फ्रैंक की जब बात सुनता है टैप्लो, तो दोबारा सॉरी कहता है। टैप्लो से सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, रियली सॉरी सर, आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई गॉट कैरीड अवे। वास्तव में सर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। तो फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। हियर टैप्लो। अब देखिए मिस्टर फ्रैंक क्या करते हैं कि वो न्यूज़पेपर लेते हैं और उसे ओपन करते हैं। टैप्लो, यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रूकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट, वुड यू। अब देखिए फिर मिस्टर फ्रैंक कहते हैं, जरा रिपीट कीजिए कि क्रूकर हैरिस ने आपसे क्या कहा था। मिस्टर फ्रैंक again wants to listen the words of Mr. Croker Harris, whatever he had said to Taplow. अब देखिए फिर टैप्लो इमिटेट करते हुए कहता है, इमिटेटिंग अगेन। टैप्लो फिर उसको कॉपी करते हुए कहता है, मिस्टर क्रोकर हैरिस की आवाज़ को इमिटेट करते हुए, कॉपी करते हुए फिर कहता है, माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व। बोले मेरे प्रिय टैप्लो, माई डियर टैप्लो, वास्तव में मैंने उतने ही मार्क्स आपको दिए हैं जितना कि तुम डिजर्व करते हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न कम और निश्चित रूप से न ही ज़्यादा। आई हैव गिवन यू द एग्जैक्ट मार्क्स वॉट एवर यू डिजर्व, नो लेस एंड नो मोर। अगेन means imitating the voice of Mr. Croker Harris, means Taplow says his words in front of Mr. Frank. अब देखिए फ्रैंक थोड़ा कठोरतापूर्वक उसकी ओर देखता है, लुकिंग सेवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एशाइलस एंड बी क्वाइट। अब देखिए सेवेली उसकी ओर देखते हुए कठोरतापूर्वक मिस्टर
फ्रैंक अब कठोरतापूर्वक टैब्लो की ओर देखते हुए कहता है कि नो, नॉट इन द लीस्ट, ये उनकी तरह बिल्कुल नहीं। कोई कहता है कि वॉट एवर बुक यू हैव यू जस्ट गो थ्रू इट, कहता है जो तुम्हारे पास बुक एसएलएस है उसे पढ़ो और शांत हो। मीनिंग देयर बाई ही जस्ट wants Capullo to be silent and to sit there silently and read the book whatever he had. अब देखिए कैप्लो जब सुनता है तो थोड़ा शांत हो जाता है और डिसलाइक के साथ उस बुक की ओर देखता है जो उसके पास है, कहता है अरे एशियस। So students, that's all. We shall go through the next lecture in the next video. Thank you.